So we'll be starting in another 2 to 3 minutes. So all who are there in the room could just wait for some time, and we'll be starting off. Hi, Tanvi. Hello, Karam. Hi, Nita. I hope you're doing good. We're just waiting. We'll start in another 2 to 3 minutes. So once we all are there, so we'll start today's topic. Hello, Deepa. Hi, Pooja. And we have good afternoon, Minu. Hi, Aditi. So I'm just going to wait uh, 1 or 2 minutes more so that we have at least 15-20 people. So we start this and we could proceed. I hope आप सबने देखा होगा कि जो आज का हमारा सेशन है, this is basically the session for today is about important skills to get hired. So this is a very interesting topic, and I'm wishing that a lot of ITI के जो और candidates हैं हमारे join करें so that it'll be good for all of us, and it's going to be a very interactive session. Just another 2 3 minutes we'll wait and then we'll start. Okay, so people can come later on, join karte रहेंगे. So without wasting any more time, so let's start for today. Um, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, today's topic is very relevant because आप जब अभी ITIs में हैं, the next thing what you want to do after आपने अपना जब कोर्स कर लिया होता है is to get a job. So today's topic is all about those particular things we could do to improve our opportunities to get that particular job that we look forward to या जो हम चाहते हैं करना. तो it's going to be all about that. तो बिफोर आई बिगिन मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो दूंगा दैट माय नेम इज भूपेंद्र सिंह एंड आई एम द प्लेसमेंट ऑफिसर फॉर दिल्ली एंड राजस्थान विद क्वेस्ट and I've been with Quest for the last 7 months, and it has been a great experience. And especially because this make opportunity, what I would say is that I get that chance to meet all of you young people. आपके ITIs में आके interacting with you, and then
helping you on making you understand the importance of how economically you could get involved, get a job, get economically active, and how important that is. So that is about me. And just to let you know, I've got approximately 12 years of experience with both multinational companies and development sector ka hai. So a lot of interviewings in my career, I've taken a lot of interviews, and I'll be giving you some insights that from the perspective of interviewee, जब आप किसी के पास इंटरव्यू देने को जाते हैं, तो what are the things or the qualities, or you could even say the skills that that particular person would look into. So we're going to be discussing all these, and today's session, as I said, is all about how to increase your chances of getting selected in that interview. So interview in itself is an entire process, and interview, देखिए, सुनने में बड़ा इजी ऐसा लगता है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड वे यू जस्ट से आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और आई बीन इन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. So there's a lot that goes before the interview and during the interview, the day of interview, I would say. So what we could do here is that first of all, I would put a question to all of you, and ये एक बड़ा important question है that I would like to understand कि हम जो ITI में आप लोग candidates हैं, what do you understand interview से आप क्या मतलब समझते हैं? So I would just like some of your answers so that uh, to get an idea of what your thinking is कि आप लोग क्या समझते हैं interview के बारे में. तो अभी Sanya, good afternoon. I'll be looking at the comments section for the next minute or so, and once I see some questions, we'll proceed. And थोड़ा सा I want to get an idea कि what interview means to you. आप लोग क्या समझते हैं interview से? जब इंटरव्यू हम वर्ड सुनते हैं, तो what are the things that come into your mind कि क्या होता है इंटरव्यू, एंड skills एक दूसरा क्वेश्चन है, but I'll come to that later. But first, just to get an understanding of what interview is. Hi Meg, hi Tanu, sorry. So, जो भी अभी लोग जुड़ रहे हैं, I see a lot of people जो अभी अभी जुड़े हैं. So I was just discussing in the group that first of all, hi to all. A lot of highs are coming. So uh, okay, now I've started getting questions. So yeah, now like Aditi said, interviewer asked yourself. ठीक है, asked yourself से मतलब interviewer जो है वो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि what do they ask about yourself? Correct, that's a question वो जो पूछते हैं. Tanvi says interviews interaction with employer, a very good example, she's given a good quote. And इसी तरीके से और कोई जो भी आप लोग अभी ज्वाइन किए हैं, would you like to just एक लाइन में और maybe 2-3 words you could tell me इंटरव्यू से आप लोग क्या समझते हैं? तनु, Anshu, any of you, Aditi, you've answered. ठीक है. So let's start because I think अभी आप लोग on your mobiles हैं logged in or maybe laptops. So I'll just wait another 30 seconds. Okay, Shefali Sharma says interview is to know about a person, like his skills, goal, passion. Very good, Shefali. That's a nice answer. Anshu says conversation between two or more people. Correct. इसमें one party is the person who's giving the interview and the other party is the person who is conducting or organizing that. Vaibhav says बहुत सारे सवाल. So correct. That is also another way of looking at it कि काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं. Priyanka says interview asked about yourself. वेल ठीक है. मोर और लेस व्हाट आई सी इज दैट इंटरव्यू कहीं ना कहीं हम लोगों को एक थॉट प्रोसेस है कि इंटरव्यू है क्या, राइट? सो अ लॉट ऑफ राइट, ऑलमोस्ट राइट आंसर्स आई वुड से, एंड हर इंडिविजुअल की एक डेफिनेशन हो सकती है. सो व्हाट आई वुड से फॉर मी इज कि इंटरव्यू एक वो पर्टिकुलर 15 to 20 मिनट्स होते हैं
जिसमें आप बेसिकली आप अपने स्किल्स के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में और अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में जो इंटरव्यू है उसको आप बताते हैं. सो इट्स बेसिकली यू नो what all you know, your skills, your qualifications, आपको 15 to 20 minutes में आप basically you're trying to inform the other person sitting in front of you ki what qualities you have. Abhi I got an answer from Surbhi Chauhan that says conversation between employee and interview. That's correct. So it is those two parties. Now, जैसे मैंने बताया, so 15 to 20 minutes जिसमें आपने अपना education, you know, you're gonna tell him that why are you right for this particular job. सो इंटरव्यू करने का मकसद मेन ये है कि आप उनको ये समझा सको कि हाउ डू योर स्किल्स मैच टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हाउ डू यू मैच दैट, व्हाई आर यू द करेक्ट पर्सन, and why is it that you are the suitable candidate for that particular job. So almost all of us are saying that it's a communication process that happens between two individuals. दो जने बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर जो है और इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है. ठीक है, उसके स्किल समझना चाहता है, वो जिस प्रोफाइल के लिए उसने अप्लाई किया है, वेदर ही और शी इज द राइट कैंडिडेट. दैट्स अनदर थिंग दे वुड लाइक टू नो. एंड as I said, what makes you different from the crowd. आप suppose करो एक particular opportunity निकलती है, so it's not only you who is applying for that particular job. So it's basically कि आप और सारे crowd से अपने आप को differentiate कैसे करते हो. ठीक है, so that is really important and I'm still getting good answers. Interview is Priyanka Singh says interview is your introduction and your skills and your talking style. Well, that is, talking style. I believe that she's trying to say that, your communication skills that matter over here. Mehak says students ask, okay, so that's different. Priyanka, your confidence. Yeah, absolutely. Confidence is a component. जब आप किसी से बात करते हैं, confidence is really important to get you through that interview. So that is one key skill. So अब हम कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि that what interview is, and my second question is related to this. अब आप सबसे मैं ये जानना चाहूंगा कि what are those skills, आपके हिसाब से वो क्या qualities हैं जो कि आपको एक इंटरव्यू में they could get you selected. So अभी फॉर एग्जाम्पल प्रियंका सिंह ने भी जो जवाब दिया, इट सेज दैट you're confident. So confidence level is one particular great skill that you need to have. And interview basically दो इंसानों के बीच में एक conversation है. So first and foremost is कि एक I'm just giving a hint that you need to be calm, you need to be confident. इस तरीके से आप लोग और क्या समझते हैं कि what are the skills required for getting selected in an interview. So again, I'm going to wait here for like effective communication. Anshu, that's a very good thing you said. And also Priyanka said that, effective communication agar aap karega, to automatically, if you're confident, you would definitely go ahead and, you'd be more effective in your communication. So this is a very good thing that you said. Effective communication is their confidence behavior. Absolutely. Because behavior से what I'll put this into is कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो your body language also matters a lot. So behavior is through your communication, behavior is through your body language. Positive attitude, absolutely, because आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं and if you have a positive attitude, so that positivity is all throughout your personality. जब आप positive हैं, वो आप बात भी जब करेंगे, so you'll easily understand that the other person in front could easily judge that this is a very positive person. Great. So, some good answers, and I'm really glad कि growth mindset. Shefali said a very good thing कि growth mindset is right. आपके अंदर वो दिखना चाहिए एम्प्लॉयर को भी कि आप growth के towards भी सोच रहे हैं. So these are very good answers, and this is what I wanted to know is that basically जो भी quest हम ये sessions ले रहे हैं, I would say that these sessions are I would not call it a normal session. I would say it's like how quality spending of time through Quest Alliance. So it's like the quarantine time जो है उसको हम कैसे quality के साथ Quest के साथ utilize कर सकते हैं. This is a perfect example. And Sania Khan says
sir, in this interviewer want to confidence and good communication skills and your dress sense. तो very good, very right also सानिया ने तीन चार चीजों को यहाँ पे include किया है कि they want to judge your confidence, they want to judge your communication skills, they also want to see your dressing sense. So these are very important topics and I'll be coming on to these individually. Bhavya says body language. Absolutely, body language is a very important thing which is observed in during that interview. And जैसे मैंने फिर से repeat कर रहा हूँ 15 to 20 minutes है. तो basically you should consider yourself as a product. You know that I'm a product and why should you hire me? तो we have to highlight ourselves. वो हमारे attitude के through, हमारे confidence के through, हमारे qualifications के through we have to highlight these things. Meenu says technical skills like good typing, good in MS Excel, and other skills related to your work. Absolutely, Meenu. ये सारे के सारे आपके qualifications में आते हैं. No doubt, these are things which are JD के हिसाब से these are very important things that you just said. So good to know that we understand कि interview क्या होता है, interview का process क्या होता है, ये हम सबको पता है. And it's really good to also see that कि हम लोग कहीं ना कहीं उस mindset में है कि हमें skills भी पता है कि the skills that are there. A lot of answers that I'm getting: time management, good body language, analytical skills, uh, professionalism, hard work, honesty, punctuality. So these are very good things. इसका मतलब आप लोग इतना डिटेल में सोचते हैं. So first and foremost is that I would really congratulate you guys कि आप इन topics के बारे में सोच रहे हैं, because ITI, once you pass out through your ITI, the next important step is to get a job. ठीक है, आपने जो भी ये क्वालिफिकेशंस लिए हैं एंड आप आगे बढ़ना जा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड दैट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप उन सारे स्किल्स को एक जॉब में कैसे आप यू गेट अ जॉब. दैट इज द एंडिंग ऑफ नॉट अ एंडिंग बट इट्स अ वे ऑफ आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस को आप कैसे यूटिलाइज करें इन अ गुड वे. सो अ जॉब इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ हाउ यू go ahead with that. So what I've done today is that questions मैंने भी पूछे हैं. Now what I've done is कि जो interview है, I've divided that. आप लोग इसको आराम से समझें. So I've divided that into two simple parts. The first part is कि certain activities that or preparations that we do before the interview. ठीक है. So these would be those particular activities जो कि हम interview day से पहले करना चाहेंगे and which are very important. And मैंने जैसे पहले भी कहा कि these preparations would finally make your chances go up in getting selected. So it's really important that we pay focus to these. And second हो गई, एक तो हो गई preparations जो कि interview से पहले हम करते हैं. Then the other thing would be the preparations that we do on that day. So we'll come one on one to them. And before discussing that, thank you for the wonderful answers. And now coming to the main topic कि preparations interview से पहले कौन सी हैं. So I've put in four important things, because जब मैं भी employer मतलब when I was sitting in that seat और जब मैं interviews लेता था, तो there were certain things I would look into in a candidate कि क्या चीजें उस candidate के अंदर हों. And to be honest, मैं आपको एक चीज बताऊं, people who have been in the industry for long, आप room के अंदर जब आते हैं, the way you greet the person, the interviewer, and you take a seat and say the initial 5 minutes में ही the interviewer has a rough idea of if he's going to select you or not. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि body language, your communication skills, your confidence level is a very important aspect. And as soon as you enter that room, or maybe मैं room तो अब एक चीज है, अब see everyone has CCTV cameras and all that. तो I would say कि you should be at your best as soon as you enter that particular place जहाँ पे आप interview के लिए गए हैं. So now coming on to the part where I said कि before the interview हम किन चीजों का focus करें, तो one important thing is कि always do a background search for the organization you're going for. तो suppose करो कि अगर मेरे को किसी particular organization का एक I got an advertisement, उसका मैंने कहीं पे पढ़ा, चाहे वो Google किया, and now I would like to go for an interview. Suppose उन्होंने मेरे को select भी कर दिया, I've sent my CV. Now it's not that कि उन्होंने आपका CV पढ़ा, आपको select कर दिया, तो you're not selected. वो सिर्फ एक initial step है कि उनको आपके कहीं ना कहीं स्किल्स या आपके क्वालिफिकेशंस उस जॉब के इक्विवेलेंट लगे, सो दे हैव गिवन दैट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कम इन फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है इज दैट बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट जब आप इंटरव्यू देंगे एंड इफ दे से व्हाई डू यू वांट, सपोज अ क्वेश्चन कम्स अप टू यू कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं,
सो यू शुड हैव सम रेलेवेंट आंसर्स, जो कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफिकेशंस को किस तरीके से उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर सके. So that is really important कि you do that. And when I say background information आप ढूंढे organization के बारे में, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि it needs to be the highlighted information, like organization कब से है, कब से वो लोग काम कर रहे हैं, and apart from that कब से established है, number of employees, ये सब website में information मिलती है. And one good thing जो एक practice मैं भी करता था, वो to go to that section, और हर website में they have a section where they highlight their achievements. ठीक है, या उन्होंने जो भी awards जीते हैं, achievements attain किए हैं. So it's good कि when they say कि why do you think you're the perfect candidate for our organization, so you could also reflect your qualifications and education qualifications to that, and उनको you could this would be a way of they would understand कि ये जो हमारे सामने candidate है, she or he or she has not only just read the JD, but वो organization के बारे में पढ़ के आई है. This seriously shows the seriousness of that particular candidates towards the job. So पहला point, as I said, is really important, is to always do a background search. Google पे आप उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा समझिए उस organization के बारे में. Okay, now next thing, what I would say is that always, इसको कई लोग बड़े lightly लेते हैं, but this would be very important for you, is to always review your own resume. जो आपका resume है, I know हम खुद बनाते हैं. कई बार क्या होता है कि we go to cyber cafes and we get it made, तो वो इंसान उस तरीके से नहीं आता है कि maybe how you would like to do that. ठीक है, so it's really important that कि जो आपका खुद का resume है, you should be well aware of what you've done. ठीक है, उसमें सबसे important तो ये है कि देखिए, इंटरव्यू में सेलेक्ट होना इज वन थिंग, बट अगर आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हैं और आपके सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक है, सो दैट इज अ टोटल नो नो. तो व्हाट वी नीड टू डू इज की स्पेल चेक, आप क्रॉस चेक खुद पढ़िए, 2-3 बार उसको आप खुद देखिए. वी हैव क्वेस्ट फैसिलिटेटर्स जो आपसे टच में रहते हैं, सो यू कुड गेट इन टच विद देम. ठीक है, मेक श्योर दैट दैट प्रूफ रीडिंग इज डन बाय नॉट ओनली यू, बट और लोग भी उसको देखें. इफ देयर इज एनी सजेशंस और थिंग्स दैट दे टेल यू, यू कुड आल्सो इनकॉर्पोरेट दैट. एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीक्वेंस जो है, वो सीक्वेंस आपकी सही रहनी चाहिए. सीक्वेंस इन द सेंस, योर हायर एजुकेशन शुड और योर लास्ट क्वालिफिकेशन शुड कम फर्स्ट, एंड देन इट शुड गो डाउनवर्ड्स. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इट शुड नॉट बी कि योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन शुड कम ऑन टॉप. सो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको वैसे करें. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सीवी में कुछ अपने आप के बारे में हाईलाइट करते हैं, सपोज आई वाज द लीडर ऑफ चैरिटेबल ग्रुप, और आई डिड समथिंग विद सम, तो इट शुड बी कि आप ये सीवी में बनाते टाइम हम डाल दें ये ना, उसको आप एक बार पढ़िए. बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन कई बार इंटरव्यूज के बीच में ये होता है कि दे वो जस्ट लुक इनटू योर सीवी एंड से कि ओ, सो यू आर अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इन योर आईटीआई, तो टेल मी मोर अबाउट इट. तो उस टाइम पे इफ वी आर नॉट थॉरो विद आवर सीवी, हम थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएंगे कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी थॉरोली गो थ्रू आवर सीवी, एंड उसको हम स्पेलिंग्स हो गए, सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक चीज और है, रेलेवेंस टू जेडी. आपका सीवी आपके पास है, आपने सपोज करो एक कोपा का स्टूडेंट है, कोपा का स्टूडेंट एक बैकएंड की जॉब आई. So you should identify those key points जहां पे आप रिलेट कर सकते हैं कि मतलब like suppose I've got a speed of 40 words per minute. अब जब आप इंटरव्यू में गए and they say कि okay, why do you find yourself suitable for this particular job, so you could say कि sir, apart from the other qualities, आपके JD में मैंने ये पढ़ा कि उसमें you require a person with 35 words per minute, whereas my speed is 40, with the level of accuracy and all that. So obviously that would make you stand different. So इसलिए CV, अपने CV को पढ़ना भी बहुत important है. Now the third thing which I would say is to prepare for standard questions. So जिस तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मतलब हमें खुद पता होता है, एक आइडिया होता है कि हमारे को क्या क्या चाहिए, तो उन चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस कुड बी कि आप क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लीजिए. गूगल अगर आप यूज करते हैं, सभी आई एम श्योर वी यूज गूगल, but what we could do is that we could use Google in a proper way, try to identify those key questions that are normally asked in an interview. देखिए की क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, जैसे सिंपली दे विल आस्क यू व्हाई डू यू फाइंड योरसेल्फ फिट फॉर द जॉब. ठीक है, व्हाई शुड वी हायर यू, जिसमें वो देखना चाहते हैं कि भैया हम आप ही को क्यों हायर करें.
other things could be why do you want to work with us, तो they would like to know कि आपको उनकी organization की कौन सी चीज ऐसी अच्छी लगी कि you're interested to work with this particular organization. So make sure that हम जो questions हैं ये questions when we all of a sudden हमें face करना पड़ जाए तो it might be that we get anxious of it and ढंग से जवाब ना दे पाए. But if we do like friends हैं आज की डेट में सी क्वारंटीन के चक्कर में we all are sitting at home. So what you could do is that you could have mock interviews among your friends. अपने 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में जस्ट लेट देम रिंग यू और यू रिंग देम अप और उनसे आप इंटरव्यू के टाइप में क्वेश्चंस पूछिए. सो इन अ वे जो ये टाइम हमें मिल रहा है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जिसको आप अपने आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. प्रैक्टिसिंग इंटरव्यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल से इज दैट वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे. तो वो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आप अपने सीवी के थ्रू में बताइए कि इन्फॉर्मेशन. तो उस टाइम आप सीवी नहीं देखेंगे. इट इज बेसिकली यू स्टार्ट ऑफ विद योर इंट्रोडक्शन, व्हाट क्वालिफिकेशंस यू हैव डन, व्हाट एक्सपीरियंसेस यू हैव, व्हाट आर योर की मतलब योर यूपी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, व्हाट आर यू ग्रेट एट. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चंस का आप एक तरीके से रिकैप और आपस में इनकी मॉक इंटरव्यूज के तरीके से आप प्रैक्टिस करें. सो एनी क्वेश्चंस, इसमें मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज डू आस्क देम. कमेंट सेक्शन में भी वे लुकिंग एट द क्वेश्चन. सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क ओवर हियर आप पूछ सकते हैं. और अदरवाइज आई विल बी कीपिंग 15-20 मिनट्स इन द एंड कि वहां पे भी आपके इंडिविजुअल कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई बी एड्रेसिंग देम एज वेल. एंड so how do you like to go out? अभी किसी को कोई questions हैं? So I'm looking at the section. अगर if someone has any questions, I would answer here now. Well, perfect. It seems that अभी everyone have parked their questions. सबके questions अभी फिर last में attend करते हैं. So okay, now तीन चीजें हमने discuss कर ली थी. One was that interview से पहले. Okay, so प्रियंका का question आया है. So you are choosing me this job. Okay, so प्रियंका थोड़ा सा इसको elaborate करो. And why are you choosing this job? ये आपका क्वेश्चन है. अगर आपका क्वेश्चन यही है कि why are you choosing this job, तो इट्स बेसिकली उसमें देखिए सबसे अच्छा इसका आंसर एक तरीके से ये रहता है कि आप अपने स्किल्स को उससे मतलब रिलेट करें विद द ऑर्गेनाइजेशन या जो जेडी आपको मिला है. So I'm choosing this job because I see that you require a person who's good in communication, and I find I have I've got good communication skills. और work से related हो, if they say कि you need a person जिसको MS Word आता हो, Excel आता हो, आपकी वो skills हैं, तो relate yourself to that. डॉली से हायर एजुकेशन में हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन में आप ये ध्यान रखिए कि सीवी बड़े से छोटे मतलब जो रिज्यूमे है जब हम इसको किसी को बताते हैं इंटरव्यू में, दैट गोज ऑल. सो इट्स गोइंग टू बी दैट स्कूलिंग बेसिकली आप दे से नॉर्मली दे से दैट करंटली व्हाट आर यू डूइंग, बट आप स्कूलिंग भी जो है ऑटोमेटिकली अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो यू कुड से दैट आई हैव डन माय 12th standard from your school and I secure this much marks, and then I'm doing ITI because आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था. So you could answer it this ways. And Surbi says, what is the meaning of organizational skills? Well, organizational skills, Surbi, just to let you know, is not a very simple term. Organization skills includes a lot of things. Organizational skills may, your individual skills are also a part of it. And organizational skills may, the most important thing is that how do you fit into that organization? Because her organization ka, there's an internal environment. So you should have that skills, like adaptability honi chahiye aapke andar. You should have the skills to, work in a team. Similarly, you should be, kai organizations hote hain which are basically more or less into 24/7 work culture. So are you flexible? So these are kind of organization skills, and these depend upon organizations to organizations. So iski ek simplified definition kabhi nahi milegi,
but it would differ organization to organization, and certain skills जो कि आपको उस particular organization में मतलब which the organization would understand that you're a perfect candidate to retain to stay in that organization, that would come under those particular skills. Just Jyoti says, Sirf, if interview asks what salary do you expect for this job? Well, Jyoti, this is a very interesting question, and I'm glad you're asking that. Ultimately, हम job करते हैं तो apart from the satisfaction that we drive, it is also that the money that comes along with that particular job. अब इसके देखिए, it totally depends. One answer could be that जो उनके JD में लिखी हुई है salary. So mostly आज की date में I would say that 90% of the JDs that you'll see would have that bracket of salary. सो वो बेसिकली इट्स अंडरस्टूड, अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर उन्होंने कहीं पे सपोज करो मेंशन किया 12 10 to 15,000. सो वन थिंग इज दैट ये सवाल थोड़ा सा यू हैव टू होल्ड इट, बिकॉज वन थिंग इज दैट ये इट वुड मेक सेंस टू आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस यू बीन सिलेक्टेड एंड ऑफर्ड समथिंग. ठीक है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आप इंटरव्यू में गए हैं, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन यू से कि सर व्हाट सैलरी वुड आई गेट. So in case if it's not totally mentioned, you could ask it in a very polite way that, sir, if I get selected, may I know what would be the salary bracket that I come into or offer to a candidate with my experience. So that is one way of asking this thing. But ये उस केस में आप करें कि जहाँ पे आपको लगता है कि सैलरी मेंशन ही नहीं हुई है, and then you've gone through, you've had a very good interview, and वो आपको पता चल जाएगा with the level, the way the communication goes on with the interviewer. You would easily understand कि आपका जो ये है मतलब इंटरव्यू किस तरीके का जाए. ठीक है, so you could ask it in a very polite way. Then Shefali says, why should I hire you? Well, Shefali, इसका जैसे as I said, यहाँ पे आप अपने सीवी में से, अपने रिज्यूमे में से वो पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हो. सपोज कीजिए मैं एक एडवर्टाइजमेंट आई जिसमें लिखा है कि आई नीड अ पर्सन हु इज गुड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. So you could say that अगर आपने कोई कोर्स किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, so you could mention that I find myself suitable for the job. Is one is that I really look forward to working with your organization, and the second thing is that your JD clearly mentions that you require a person who's good in Excel, who has a good typing speed. So I do have these particular things, and then you could elaborate on that. Okay, so that's on the question parts. And now three things we had discussed. One was हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं, थोड़ा होमवर्क करके जाएं. सेकेंड थिंग वाज ऑलवेज रिव्यू योर ओन रिज्यूमे. जो आप अपना खुद का सीवी है उसको, रिज्यूमे को ढंग से कहाँ पे आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दैट. थर्ड थिंग वुड बी प्रिपेयर फॉर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. जैसे मैंने बोला कि हम क्वेश्चंस के लिए खुद ही प्रिपेयर होके जाएं. Why should I hire you? जैसे भी आपने पूछा. So these are certain things that practice के साथ, as they say, practice makes everyone perfect. So this is a thing, keep practicing these mock interviews. This is the reason why we do mock interviews. Quest focuses a lot of things on हम लोग जो हमारे facilitators हैं, they do a lot of mock interviews, and this is the reason कि वो कहीं ना कहीं you start gaining those experiences, you build up that confidence, so that when you go for an actual interview, you don't hesitate to respond back. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. एंड इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट जो प्री इंटरव्यू में जिसको मैंने एक चीज और डाली है, जैसे आई सेड 4 पॉइंट्स हैं. द फोर्थ थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू वुड हैव क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं. तो अभी जैसे यहाँ पे वी हैड अ क्वेश्चन वे दे सेड कि सैलरी के बारे में, जो जस्ट कैंडिडेट ज्योति आस्क्ड दैट सैलरी, व्हाट सैलरी वुड आई गेट. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स की देखिए, ऑब्वियसली बात है कि अगर एम्प्लॉयर के माइंड में क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में क्वेश्चंस हैं, दे आर क्लियरिंग इट. सिमिलरली यू वुड आल्सो हैव सर्टेन थिंग जो आपके माइंड में होंगे. तो पहले 2-3 चीज मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछिए, बिकॉज अल्टीमेटली इंटरव्यू जैसे मैंने बताया कि दो इंसानों के बीच में ही है. सो इफ दे हैव डाउट्स, यू कुड आल्सो हैव डाउट्स. So you could always clear them. पहले आप इंटरव्यू दीजिए, but then always mostly what I've seen is कि during the end I used to do it, and whenever I've faced an interview, मेरे से भी ये चीज पूछते हैं, would there be anything you would like to ask? तो वो अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बट उसके लिए भी 2-3 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा. वन इज दैट कभी भी वो क्वेश्चंस मत पूछिए जिसकी इंफॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाए.
सपोज सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, अब अगर उनकी वेबसाइट में दैट इन्फॉर्मेशन इज देयर, देयर इज नो पॉइंट आस्किंग दैट. एंड सिमिलरली अदर इन्फॉर्मेशन की यू नो the information that you're asking is available on the website, please don't ask that. मैं एक सिंपल सा एक रूल इस तरीके से रखता हूँ कि वो मैं पढ़ सकता हूँ वेबसाइट से, वहां पे आप पूछ सकते हैं. सपोज कीजिए योर, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, सर आपके वर्क टाइमिंग्स क्या रहते हैं, so they could tell you, that we work 24/7, but for women we have day shifts only. So those will clear your doubts. And ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप ये पूछें कि आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो व्हाट आर माय ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूछने से ना सिर्फ ये पता चलता है दैट यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर अ जॉब, but it also shows that your level of maturity कि you are seriously looking for a job, और आप उस लेवल पे सोच रहे हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके कहां तक ग्रो कर सकते हो. तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, दे वुड लुक फॉर एम्प्लॉइज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, हु वुड वर्क विद देम. बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट डे से कोई आपको डायरेक्टली, अपार्ट फ्रॉम दो तीन कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं कि जिसमें फर्स्ट सेकंड डे से आपको जॉब पे वो कर देते हैं, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट यू गेट ऑन जॉब ट्रेनिंग, दे कॉल इट ओजीटी. सो इट्स बेसिकली 1 वीक, और इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी. कई ऑर्गेनाइजेशंस 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस 1 हफ्ते की देते हैं. तो दैट इज दोज पर्टिकुलर पीरियड्स वे यू वुड अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनाइजेशन काम किस तरीके से होता है, एंड यू गो अबाउट इट. सो ग्रोथ, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि there's a lot of investment that goes, जो ट्रेनिंग आपको देते हैं, उस ट्रेनर की कॉस्ट, जहां पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सो एवरीथिंग इज बैक्ड बाय मनी, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पे कुछ पैसा स्पेंड कर रहा है, सो दे वुड लाइक टू हैव यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दे वुड रादर लाइक टू हैव यू टिल व्हेनेवर यू कुड कंटिन्यू. तो इट्स ऑलवेज आस्क कि आप उनसे पूछिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कि सर मेरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो दे वुड टेल यू दैट करंटली इफ यू आर ज्वाइनिंग इन अस एज अ एसोसिएट लेवल, next level could be team leader, or it could be supervisor, assistant manager, and similarly it goes up. So it's always important कि आप ये पूछें. Keep your questions limited to 2 to 3, and relevant questions हो, questions हो जो उनको लगे कि आप you genuinely like to know, which are not there on the website, like growth prospects आप जानना चाहें, and that. And I have a question here. Jyoti says, sir, if interview asks what are your weaknesses, what could be answer? Okay, so well, this is also a very good thing. Weaknesses. Now, weaknesses may see it totally depends mindset. अब weaknesses में हम जब यहाँ पे बात करें तो I always had one rule that I followed. इसके अलग अलग तरीके होते हैं, but what I followed was कि if I say that आपकी कोई particular चीज है, like I would say, I'll give you an example. I'll say that I have a weakness that I'm not too good in Excel formulas, but I have joined online crash course where I'm learning this and I'm trying to improve. तो basically आप ये दिखाइए, देखिए वहां पे झूठ मत बोले कि मेरी कोई weaknesses नहीं है, तो that's a different thing. But अगर weaknesses हैं, you should go about it कि tell that weakness कि सर ये maybe I get anxious. अब ये एक weakness हो सकती है कि I get anxious when I interact with people. बट उससे वो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आप अपनी वीकनेस के बाद उसको काउंटर करने के लिए आपका क्या प्लान है, दैट इज व्हाट द इंटरव्यूअर इज मोर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, सो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीकनेस पे तो आप फोकस करो, बट अगेन ही इज मोर और लेस नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन कि आपकी वीकनेसेस क्या है, बट ही वुड लाइक टू नो कि आपका प्लान क्या है उस वीकनेस को काउंटर करने के लिए. एट टाइम्स आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे where they would ask you is that कि suppose one day you come to office, your reporting manager is not there, और कोई urgent चीज जो है उसके ऊपर काम करना है, तो how would you go about it? आपका मैनेजर फोन नहीं उठा रहा है, he is not available on internet or something. So then these are the ways they want to see your creative side. तो वो रियल टाइम सिनेरियो नहीं है, दे जस्ट थ्रोइंग अ क्वेश्चन टू यू कि ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो आप कैसे इसको डील करेंगे. मतलब आपके मैनेजर नहीं आए हैं और यू डोंट हैव एनीवन एल्स टू आस्क, आप क्या करेंगे. सो बेसिकली दैट क्वेश्चन इज नॉट दैट कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत कॉमनली होता है, सो इसलिए वो पूछ रहे हैं, बट द रीजन वाई इज आस्किंग यू इज दैट ही वांट्स टू जज कि आप आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचते हैं, कि ऐसे सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, आप क्या जवाब देते हैं, हाउ कुड यू वर्क इट आउट, हाउ डू यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल.
right? So uh, सी डॉली सेज इंग्लिश इज अ मस्ट इन इंटरव्यू, नहीं ऐसा नहीं है डॉली। कॉन्फिडेंट होना और अपनी बात को सिंपल और स्पष्ट तरीके से रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। इंग्लिश होना इज अ एडवांटेज कि आपके पास है, बट अगर आप कोई इंफॉर्मेशन हिंदी में भी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से आप समझा सकते हैं तो दैट इज मोर और लेस मोर इम्पोर्टेंट। सो वहां पे इंग्लिश हिंदी जो है इस चीज को जज करें ना करें, बट हाँ ये जरूर जज करेंगे कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कैसे बताते हैं, अपने सीवी के थ्रू कैसे अपनी क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करते हैं, ये सारी चीजें। तो वहां पे क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करना और कॉन्फिडेंस लेवल जज करना और ऑर्गेनाइजेशन में आप कितना रहोगे, रिटेन कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन आपको, दैट इज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द फोर थिंग्स जो कि प्री इंटरव्यू के लिए जो हमारे हुए हैं। जैसे मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन ही रखिएगा, बिकॉज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट द राइट थिंग एज वेल। और इनको आप हमेशा लास्ट में जब इंटरव्यू आपसे पूछते हैं, दे गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ जानना चाहेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग, सो देन यू कुड पिच दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, नाउ ये हमारा हो गया वो पार्ट की वी वर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स प्रिपरेशंस वी डू बिफोर द जॉब। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज की द डे ऑफ इंटरव्यू। सो फाइनली जो आपकी नर्वसनेस है, सब कुछ है, उसको आपने डील करने के लिए मॉक इंटरव्यूज कर लिए, सीवी देख लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ कम्स द एक्चुअल डे कि आज आपका इंटरव्यू है, ठीक है। सो दिस वुड बी द इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड इसमें मैंने देखिए 5-6 चीजें रखी हैं, एंड दिस इज ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज हम जब फर्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम बेसिकली ये नहीं जज कर पाते हैं कि हमसे क्या पूछा जाएगा, क्या चीजें ऑब्जर्व होंगी, क्या सवाल होंगे। सो दैट इज वाई ये जो सेशन है इसमें हम यही चीज कर रहे हैं कि सो दैट यू गेट फेमिलराइज। तो इसीलिए जो सेकंड पार्ट मैंने कहा था कि कुछ चीजें तो वो होंगी जो हम इंटरव्यू से पहले जिनको हम डील करते हैं एंड वी प्रिपेयर फॉर देम। द अदर पार्ट वाज those particular things that we do on the day of interview, right? And at the venue of the interview, जहां पे इंटरव्यू है वहां पे और उस पे। सो पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको 10 बजे का उन्होंने इंटरव्यू का टाइम दिया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच 15 to 20 minutes बिफोर टाइम। हम ये ना सोचें कि बिकॉज देखिए अल्टीमेटली नॉट ओनली दिल्ली बट वी ऑल्सो हैव दैट फेज वेयर वी इन दिल्ली, हम कभी लेट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो ऑलवेज कीप दैट 15-20 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। एंड देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊं, दिल्ली में सपोज 10 बजे आपका इंटरव्यू है एंड आप 10 बजे ही आए या 2 मिनट पहले आए, आपने रिसेप्शन में बोला मेरा 10 बजे इंटरव्यू, उन्होंने आपको बोल दिया जाइए मैम रूम में जाइए इंटरव्यू दीजिए, तो आपको अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। सो नेवर डू दैट, हमेशा 15 से 20 मिनट आप पहले पहुंचिए। उसका फायदा क्या होता है, आई कम टू दैट, आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस आल्सो, इनको आई जस्ट कवर दिस फर्स्ट टॉपिक एंड उसके बाद विल कम टू द क्वेश्चंस। एंड ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एक तो आप 15 से 20 मिनट पहले पहुंचिए। सो इट्स ऑलवेज गुड आपके लिए। देखिए जॉब इंपॉर्टेंट है जहां से you'd बी गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी वेयर यू विल बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल रहा है एंड यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब, तो आप हमेशा मतलब यू हैव टू बी पंक्चुअल। इंटरव्यू से 15-20 मिनट्स पहले पहुंचिए। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कहीं नई जगह पे जाते हैं, इफ यू गो टू अ न्यू प्लेस, वी ऑलवेज सी दैट नई जगह पे जाके सब लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बिकॉज आप उस जगह को जानते नहीं है, ठीक है। हर ऑफिस एक सा नहीं होता है, सिमिलरली हर ऑफिस का रिसेप्शन भी एक सा नहीं होता है, लोकेशंस भी अलग होंगी। सो वन थिंग इज कि आप जब जाएंगे, आप रिसेप्शन पे गए, यू इन्फॉर्म दैट रिसेप्शन पे जो है कि मैम मेरा इंटरव्यू है, आई हैव बीन कॉल्ड एट 10। तो वो आपका सीवी लेके दे विल से कि प्लीज टेक अ सीट एंड जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा आप बैठिए। तो वो 10-15 मिनट पहले तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। आप जो मेट्रो से शायद पैदल चल के वहां तक गए हैं या कोई ड्रॉप करने आपको आया, तो यू गेट दैट बिट ऑफ रिलैक्सेशन जहां पे आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, यू कुड कलेक्ट योर थॉट्स, ठीक है। मेट्रो में आए, किसी का झगड़ा हो रहा था, ये हो रहा था, whatever, there are so lot of things happening। तो आप उन चीजों से थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री कर लीजिए, 15 मिनट थोड़ा सा बैठिए, यू कुड हैव वाटर, इफ यू वांट टू गो टू द रेस्ट रूम यू कुड डू दैट, जस्ट फ्री योर सेल्फ अप एंड ट्राई टू रिजुविनेट योर सेल्फ, की उस टाइम पे आप थोड़ा सा वो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इट्स नॉट कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट व्हाट आई वुड से हियर इज कि
हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप अंदर जाएं तो ऑलवेज बी वेरी कर्टियस एंड पोलाइट टू पीपल। जो रिसेप्शन पे हो, जो वहां पे आपको मतलब मे बी बगल में आके बैठे हैं, ये उसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज विद इन टेक महिंद्रा, तो कई बार इंटरव्यूज के बीच में हम लोग क्या होता था, बाहर रिसेप्शन में कोई कॉल अटेंड करने के लिए आके हम भी बैठ जाते थे। तो उसमें होता क्या था कि वी वर सिटिंग, मतलब एम्प्लॉयर माइट सिट देयर फॉर वट एवर रीजन, बट वहां पे इफ यू मे बी गेटिंग एंग्री एट समवन, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर रहे, तो ऑल थिंग्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। एंड रिसेप्शन पे भी जो हमारे होते हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप उनसे रूडनेस शो करेंगे या आप उनसे पोलाइट नहीं है, तो ट्रस्ट मी, वो फीडबैक अंदर जाता है। तो इसलिए बी एट योर वेरी बेस्ट एज सून एज यू स्टेप इन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना आराम से बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, हैव योर वाटर, use the restroom if you wish to, and just focus on the interview that is coming in front. If you want to kill time, you could also go through your CV. अपने CV को एक बार नजर मारिए, so that you know what all is there. And second thing is a very important thing. एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, रिज्यूमे जो आप ले जाते हैं अपना, या उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, आई ऑलमोस्ट 60 to 65% ऑफ द टाइम हैव सीन कि लोग क्या करते हैं, उसको रोल कर देते हैं। बैठे बैठे मेट्रो में आ रहे हैं, या मे बी सिटिंग इन द रिसेप्शन, एंड दे स्टार्ट रोलिंग दैट सीवी। दैट इज अ टोटल नो नो। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली चीज तो देखिए, जो आपका सीवी है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग यू, ठीक है। बट इसमें आप क्या कर रहे हैं कि अपने सीवी में अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह, जब आपका जो सीवी है इंटरव्यू के पास, आप कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप जाएंगे, द सीवी गोज टू द रिसेप्शनिस्ट एंड शी गिव्स इट इन टू द पर्सन जो इंटरव्यू लेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पहले आपका सीवी इंटरव्यू को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सीवी बहुत साफ सुथरा हो, सीवी मुड़ा हुआ ना हो, इट शुड बी प्रॉपर, इन प्रॉपर शेप। और उसको आप, सबसे बेस्ट है कि फोल्डर्स आते हैं, टेक इट इन अ फोल्डर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सीवी आपका कितने आने वाले टाइम में, मतलब कमिंग फ्यूचर में यूज होता है, सो ऑलवेज गिव इट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड रोल कभी नहीं करना है, ठीक है, दैट इज वन नो नो। एंड उसको, मतलब इफ यू गोना टेक इट इन अ प्रॉपर कवर, सो उसमें गंदा होने के चांसेस भी नहीं है, रोल होने के चांसेस भी नहीं, यू विल कीप इट प्रॉपर। सो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज नॉर्मली किसी का सीवी आ रहा है और रोल्ड अप है, सो दे वुड गेट दैट इंप्रेशन कि हाउ सीरियस यू आर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इसलिए दैट्स अ बिग नो नो। थर्ड आई वुड से कि देखिए, जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? Giving that interview, right, and getting that job. तो what I would like to say here is कि जब हमारी उस टाइम पे फोकस सारा ये होना चाहिए कि हम इस जॉब को कैसे अटेन करें, हाउ डू वी गेट दैट जॉब। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब इंटरव्यू प्लेस पे हो, प्लीज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बिकॉज आप सपोज कीजिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस बढ़ रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग अ कॉल और समथिंग, तो उससे होगा कुछ नहीं, यू वुड डेफिनेटली गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप जाएं रिसेप्शनिस्ट, मतलब रिसेप्शन में पहुंचे, अपना सीवी दें, व्हेन यू सिटिंग, दैट दोस 15 मिनट्स जो आपको मिल रहे हैं, 10 मिनट्स मिल रहे हैं, make sure you put your phone on silent mode. Make sure you either put it on silent or vibration mode, because it's not good, it does not give a good impression अगर आप कॉल ले रहे हैं, and you and avoid taking calls। आपकी उस टाइम प्रायोरिटी ये है कि मैं जॉब लूं, ठीक है, जॉब को सक्सेसफुली मैं इस जॉब के लिए सेलेक्ट हूं। तो उस टाइम पे सारी प्रायोरिटीज, दोस्त, फोन, सब कुछ बाद में हो सकता है। आधे घंटे बाद जब ऑर्गेनाइजेशन से आप निकलेंगे, तो यू कुड डेफिनेटली chat for as long as you want, talk to as long as you want, but not at that point of time। ठीक है, सो दैट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। फोर्थ थिंग वुड बी ड्रेस फॉर्मली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज दे से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप अगर जीन्स और टी शर्ट्स में हैं, तो यू वुड नॉट बी टेकन कैजुअली, ठीक है, यू नॉट बी टेकन सीरियसली, सॉरी। कैजुअल ड्रेस में आप हैं, टी शर्ट में हैं, जीन्स में हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं, सो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो जाता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो इंप्रेशन जो हमारा है, गो इन नीट एंड टाइडी, keep yourself groomed. And I know our facilitators, quest facilitators, they take proper sessions on how to go for an interview, how to be well dressed, how to be well groomed. So those are the things that you really need to focus उसमें, मतलब you should look professional, formals पहनिए, professional लगिए, and totally avoid any clothes which are casual, jeans, t-shirts, and
avoid these sports shoes and all that, right? So that was a third important thing. Now, one important thing which I would say is that us din thoda sa have a positive attitude and confident. You should have a confident body language, because body language. Why I'm focusing on body language? ये पीछे starting में भी session में एक second, I'm getting some questions. It says be informal at the time of interview. Surbi, you're right. We have to be informals because we're going for a job. वहाँ पे मजाक नहीं है. We want ourselves to be selected. Jyoti had asked a question. Sirf if interview discussed the salary and we are not satisfied, how can we negotiate that? Well, negotiation wala question, we'll come to it, because अभी हम flow में हैं. Let's complete this and we'll come to this flow. This question as well. And now coming to the point is that बॉडी लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि द पॉइंट यू एंटर द रूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही पहले ऑब्जर्व होती है. आफ्टर योर सीवी, व्हेन यू एंटर द रूम, इट्स यू हु आर बीइंग ऑब्जर्व. तो इफ यू आर सिटिंग इन, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड इफ यू गॉट योर शोल्डर्स लाइक सिटिंग डल, ऐसे नीचे बैठे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इज टोटली गिविंग नेगेटिव वाइब्स. So be sit up straight, have a light smile on your face, and when you're introducing yourself, because automatically क्या है, अगर आप अपने CV, अपना प्री इंटरव्यू का सेशन आपने ढंग से अगर किया है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, अपने CV के बारे में आप क्लियर हैं, you're clear about your qualifications and all that, तो automatically that would reflect in your body language. And that is also important कि वो body language आपकी पॉजिटिव भी होगी, कॉन्फिडेंट भी आप होंगे, एंड दैट विल गिव यू ऑल द मोर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड. सो इसीलिए कहते हैं कि आप जब बैठे इंटरव्यू के सामने, हैव दैट स्माइल. ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आप आर्टिफिशियल स्माइल कीजिए, स्माइल लाइटली. जब भी वो आपसे कुछ सवाल पूछें और दे आर टेलिंग यू समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉड इन द सेंस कि आप उनको एक तरीके से नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. जब वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ऑलवेज लीन अ बिट फॉरवर्ड. ये इंटरव्यूज में हम ये बॉडी लैंग्वेज भी नोट करते हैं कि जब किसी चीज को लेकर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो यू नॉर्मली लीन फॉरवर्ड. ये ह्यूमन, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हम ऐसा करते हैं. सो फॉलो दीज बेसिक थिंग्स, ड्रेस वेल एंड बी ऑन टाइम. और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे अगर आप सारा ये चीजें करके जाएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू वुड बी कॉन्फिडेंट. सो जब आप सब कुछ जानते हैं तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी लैंग्वेज विल बी पॉजिटिव, एंड इवन that positivity would be there when you speak. So that is there. And last but not the least, what I would say is that सबसे important क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं CV, मतलब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जैसे भी सामने वालों ने बोला कि भैया ओके सो विल गेट बैक टू यू या व्हाटएवर, तो हम लोग फटाफट इस उसमें होते हैं एजेंसी में कि भैया उठ के बाहर जाएं. सो डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप रुकना, मतलब यू वांट टू गेट अ जॉब इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से वी डोंट वांट टू रश आउट. सो टेक योर टाइम, कि जैसे ही आपका इंटरव्यू ओवर होता है, डू टेक योर टाइम आउट टू थैंक द इंटरव्यूअर. बिकॉज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि normally out of 10 only 1 or 2 people would thank the interviewer ki, I would like to really thank you for your time that you took for the interview, and I would wait for hearing back from you. Similarly reception pe bhi you could also say a quick thank you to the female जिसने आपका CV लिया. So these are very छोटी चीजें हैं जो उस टाइम आपको लगता है maybe they don't hold a lot of importance, but जैसा कि मैंने कहा था कि today's topic is how to increase your chances to get hired, right? So it's all about that, increasing those chances. Suppose you were polite, the interviewer interviewed at least 8 to 10 candidates, or maybe 15-20 candidates. बट अपार्ट फ्रॉम द वे आपने अपना इंटरव्यू कैसे दिया, और इंटरव्यू देने के बाद आपने जाते जाते उनको थैंक्स भी किया, रिसेप्शन पे भी यू वर पोलाइट एंड यू सेड अ थैंक टू हर. सो दीज आर थिंग्स दैट दे वुड कंसीडर कि देखिए, हो सकता है कि 2 जने फाइनलाइज हो रहे हो कि he's got the interview has 2 people in their mind, बट अल्टीमेटली वो अपनी तरफ उस चीज को लेने में टू गेट सेलेक्टेड, दीज आर स्मॉल जेस्चर्स दैट यू कुड डू व्हिच वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट. ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. एंड इसको जैसे मैंने कहा, इफ यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स, this would automatically increase your chances of being selected at an interview. कभी भी देखिए घबराइए मत, because ultimately आप अपना एक इंटरव्यू, you're giving an interview to an individual, वो इंसान है. So obviously बात है, आप एक नई जगह में जाने, इसलिए मैंने कहा आप थोड़ा टाइम से पहुंचिए, so you will have that time which you could spend and get relaxed and be confident again. So confidence रहिए, you build that confident. mock interviews करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा. हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, हैव दैट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. एंड
that was all for today's topic, and now I'll be open for questions. So abhi आपके questions जो हैं, let's I'll give you 2 minutes where you could type in your questions, and we could proceed from there then. And while आप अपने questions लिख रहे हैं, I would also like to know that Delhi में whenever you get calls is basically मैं हूँ, मेरी team, we are totally looking after the placement perspective. So आप बहुत सारी calls आपके पास आती होंगी, प्रियंका, वर्षा, कोमल जो हैं, they are ICF Industry Connect Fellows. तो वो लोग भी ITI से ही हैं, and they are today working with us, and they are regularly in touch with you guys. आप लोगों को मतलब you'll be getting a lot of calls about जो भी job opportunities आ रही हैं. So please feel free, आपके कोई भी discussion, मतलब कुछ भी questions होते हैं, doubt होते हैं, they'll be getting in touch with you over the coming days. And they are the persons who would actually, जो हम as a department we identify a lot of job opportunities, and once we get those job opportunities, the ICFs generally float them. आपके groups बने हुए हैं, तो your facilitators would float these particular jobs. ICF Industry Connect Fellows जो हैं वो they would float these jobs. And if you have any queries, they'll be doing all sessions भी हम लोग करते हैं, they'll give you more information about organization क्या है. So they will be keeping all those things there so that you guys are well known of क्या है. So that's what my team does in Delhi and Rajasthan. Well, yes, एक क्वेश्चन है फ्रॉम वैभव दैट सेज कैन क्वेस्ट जो क्वेस्ट है आपको जॉब में हेल्प कर सकता है. बिल्कुल. देखिए, प्लेसमेंट टीम का ही जो प्रॉपर मोटिव है होने का, एग्जिस्ट करने का, वो यही है कि आप देखिए, फैसिलिटेटर्स आपको आईटीआईज में आके दे गिव यू द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू गेट दैट जॉब. प्लेसमेंट टीम का फुल फोकस ये होता है कि हम जो भी आपके रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वी गो अहेड एंड आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज, और वो अपॉर्चुनिटीज आपको अलग अलग तरीके से आपके ग्रुप्स में हाईलाइट होंगे, आईटीआई ग्रुप्स में होंगे, एंड टीपीओ ग्रुप्स हैं उसमें भी हाईलाइट होते हैं. एंड यू वुड ऑल्सो गेट वन ऑन वन कॉल्स. हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करके भी बताते हैं कि भैया देखिए, आप ये पर्टिकुलर जॉब्स हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. सो येस, हमारी टीम डेफिनेटली भी हेल्प यू इन गेटिंग जॉब्स. एंड यही बेसिक रोल है. प्लेसमेंट टीम का काम ही है कि आप लोगों को प्लेसमेंट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना. एंड ओके, वेल, यस, शेफाली ने क्वेश्चन पूछा है कि दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन दैट सेज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years. अब शेफाली, जस्ट टू लेट यू नो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से द एम्प्लॉयर जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना रुकेंगे, कितना टाइम तक आप काम करेंगे. सो व्हेन इसमें दो एस्पेक्ट हैं. वन इज दैट, देखिए, दो एस्पेक्ट होंगे. वन इज दैट वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या जॉब मार्केट के बारे में जानते हैं. ठीक है, बिकॉज 5 years में सपोज इफ यू टॉक अबाउट अ बीपीओ, या इफ यू टॉक अबाउट अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आईटी कंपनी की हम बात करते हैं, आईटी में जैसे आप एंट्री करते हैं, यू आर एनालिस्ट. ठीक है, यू आर हायर्ड एज एसोसिएट और एनालिस्ट. अब 5 साल में यू शुड बी कैलकुलेटिव. 5 साल में मतलब 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद यू बिकम अ सीनियर मींस एनालिस्ट या कंसल्टेंट. देन 2 to 3 years यू बिकम अ सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर फॉर दैट डोमेन. तो 5 साल में एक तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया 5 साल में, मतलब अगर आप बोलते हैं कि भैया मैं तो 5 साल में जो हूँ, आई सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर विद योर ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर वो, तो देन यू हैव टू टेल हिम कि इट टेक्स रफली 2 years टू गेट टू द फर्स्ट. देन वो, तो दैट इज हाउ दे वांट टू नो. एंड सेकंड थिंग इज कि आप जब ये चीज आंसर दें, सो देयर शुड बी दैट कन्विक्शन, बिकॉज वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप 5 साल उन ऑर्गेनाइजेशन को देने को तैयार हो. So they want to see your positivity that if you're going to stay with that organization. So this is the answer, that where do you see yourself in 5 years? जिस particular field में आप हैं, उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. गूगल एंड सी व्हाट आर द ओपनिंग्स, एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड देन एंट्री के बाद क्या टीम लीडर है, टीम लीडर के बाद क्या है फ्लो सुपरवाइजर, और लाइक आईटी में आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू गेट हायर्ड एज अ कंसल्टेंट, देन यू बिकम अ सीनियर कंसल्टेंट, देन यू बिकम अ प्रोजेक्ट लीड, नॉट अ प्रोजेक्ट लीड, अ प्रोग्राम मैनेजर, एंड देन अ प्रोजेक्ट लीड. सो यू शुड नो कि ये क्या उसमें होते हैं. सो दे वांट टू सी हाउ लॉन्ग और हाउ सीरियस यू आर अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब. सुरभि चौहान सेज व्हाई शुड आई हायर यू. इसका क्या आंसर देना चाहिए? वेल,
सुरभि, अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछा कि व्हाई शुड आई हायर यू, इज बेसिकली वो ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज यू हैव कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। सो एज आई सेड, मैंने पहले भी एक एग्जांपल कोट किया कि सपोज कीजिए वहां पे आपने कहीं कोपा के स्टूडेंट है, कहीं डेटा एंट्री की एक जॉब आई है, ठीक है, एंड वहां पे आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाई शुड आई हायर यू। तो आप ये बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, द जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली सेड दैट यू नीड अ टाइपिंग स्पीड ऑफ से 35 वर्ड्स पर मिनट। However, मेरे my typing speed is say 40-45 जो भी है एक्चुअल में। However, I'm also good at MS Word. I've done that package की जिसमें MS Word, Excel, PowerPoint पे भी मेरे को काम करना आता है। इफ आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिफरेंशिएट करती है, आपने चाहे वो आईटीआई में, स्कूल में कुछ भी ऐसा अलग से किया है विच यू थिंक कि उस टाइम पे मेक्स सेंस कि ये चीज उनके समझ में आएगी। कि जैसे मैंने सिर्फ एक चीज मांगी, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, बट आप बोल सकते हैं भाई मेरे को एक्सेल भी आती है, पावर पॉइंट भी, इन अ वे दैट आई एम गुड इन एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल द माइक्रोसॉफ्ट पैकेज आई नो प्रॉपरली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गुड इन कम्युनिकेशन एंड तो दे वांट टू सी अ वर्सटैलिटी। कई बार क्या होता है कि वो आपको इंटरव्यू तो ले रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, बट उनको ये लग रहा है कि आप शायद उससे बेटर जॉब के लिए भी डिजर्विंग हो। सो दे वांट टू सी कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, ओपन हो, और आउट ऑफ द बॉक्स क्या कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू जज कि हम आपको और किस रोल ऑफर कर सकते हैं। सो इट हैपेंस एट लॉट ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस इज कि कई लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, बट दे गेट सेलेक्टेड फॉर समथिंग बिगर। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एंड हाउ यू गिव दैट इंटरव्यू, राइट। जस्ट ज्योति सेज कैन मिरर प्रैक्टिस हेल्प इन रिमूविंग हेजिटेशन। देखिए ज्योति, हर इंसान का एक अलग तरीका हो सकता है टू रिमूव हेजिटेशन, बट मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं, बेस्ट वे हेजिटेशन का एक एक तरीका है, दैट इज वन वे आप हेजिटेशन हटा सकते हैं कि शीशे में देख के बात कीजिए एंड ऑल दैट, बट अल्टीमेटली असली चीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो व्हाट वी कुड डू इज कि इंस्टेड ऑफ मिरर, हैव टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यू गॉट योर फैमिली, किसी से भी बोले आप इंटरव्यू लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये कि मिरर इनिशियली ओके, इट्स अ गुड थिंग दैट यू कुड डू कि थोड़ा बहुत हेजिटेशन हटे, मिरर के साथ बिल्कुल करिए, बट ज्यादा हेजिटेशन आपका हटेगा जब आप किसी इंडिविजुअल से वन ऑन वन डिस्कस करेंगे। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। सो एज पर मी, यू कुड ऑल्सो कॉल मी माई टीम एंड वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। फैसिलिटेटर्स क्वेस्ट के जो होते हैं आपके पास जब आते हैं, डू दोज राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड दोज विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो मिरर प्रैक्टिस आप करते रहिए, बट बेस्ट वो है कि असली चीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स बेटर यू टॉक टू एन इंडिविजुअल, किसी इंसान से हैव दैट इंटरव्यू एंड यू विल गेट दैट। बिकॉज देखिए, मिरर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, वो तो आप जो बोलेंगे वही चीज उसमें आपको दिख रही है। वराज की सामने अगर कोई इंडिविजुअल होगा, वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दैट विल actually prepare you for an interview. Okay, now Surbhi Chauhan has a question. Group discussion से hesitation खत्म हो जा। Group discussion से yes, you're right, Jyoti. Group discussion is also a very interesting way of getting your hesitation away. Because बहुत सारे जॉब्स में क्या होता है कि जहाँ पे मास रिक्रूटमेंट होता है, थोड़े से मतलब सपोज करो कि एक साथ बल्क हायरिंग हो रही है, तो वहां पे कई बार इंटरव्यू वन ऑन वन टाइम नहीं दे पाता है कि वो हर इंडिविजुअल से एक एक करके इंटरव्यू ले। तो उस केस में व्हाट दे डू इज कि वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि आप लोग डिस्कस करते हैं, वो फटाफट देखते रहते हैं कि भैया मेरे पे 10 जने इस ग्रुप डिस्कशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस किस का, उनके नाम के आगे टिक लगा दिया। तो यस, ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड वे टू गेट रिड ऑफ इट। आप 5-6 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल आप कीजिए, गेट इन टच विद दैट एंड डू दैट डिस्कशन, एंड दैट इज अ गुड वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हेजिटेशन। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि ग्रुप डिस्कशन से इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। Chaliye. So that's on that. And once again, before we end this today's session, I would just like to thank each and every one of you. आपने अपना time दिया, and I take it as a personal learning कि आप लोगों से इन questions के through I get to know that how deep you're thinking for your jobs, and this gives me and my team an motivation कि हम लोग आपके लिए और अच्छी jobs search करें, be there with you, and the only message right now is कि अभी सब घर पे हैं, so just follow what the government is saying, the wear mask, do your do wash your hands, and बाहर जाना avoid कीजिए।
So once again, thank you all for your time, and it was wonderful having you all. And soon I'll be coming up with different, topics and different discussion, and hope to see you all soon. So thanks, and thanks from Quest Alliance once again. Bye.